Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing good. This is Oxford Broadway course book of English for grade 5 and this is the word book of English for grade 5. So today we are going to do week number 1, the remaining parts of week number 1. So you have to code date and day here in this column, today's date and day. And we will do today make mind map and spider web of my hobby on notebook, kinds of noun on workbook page number 30-31, again kinds of noun workbook page number 30-31. So firstly we are going to do the mind map of mind map and spider web of my hobby on notebook. So all of you have to open your notebooks. This is the mind map of my hobby. What is mind map? Mind map is the ideas or something which is in your mind when you are going to write about something. आपके माइंड में जो चीज़ है, जो आइडियाज़ हैं, आपने उनको कैसे अरेंज करना है. आपने उनको पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना, जस्ट आपने वो आइडियाज़ लिखने हैं जो किसी भी चीज़ को डिटेल में लिखने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो आपके माइंड में होते हैं कि ये पॉइंट मेरे माइंड में है और उसके अबाउट मैंने लिखना है. तो माइंड मैप में हमने आइडियाज़ को जस्ट अरेंज करके लिखना है और जब हम स्पाइडर वेब बनाएंगे तो उन्हीं आइडियाज़ को जस्ट स्पाइडर वेब मीन के स्पाइडर वेब उस फॉर्म में हमने लिखना है, स्पाइडर की फॉर्म में. यही पॉइंट्स जो हैं हम इनको उस शेप में लिखेंगे. सो माइंड मैप में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है 5 W's प्लस हाउ. 5 W's मीन व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ समथिंग हैपेंड. So you are going to write about your favorite hobby. So I have written about gardening. So gardening, आप किस टाइम गार्डनिंग करते हो? इवनिंग टाइम. उसमें क्या होता है? डिगिंग सॉइल. कहाँ करते हैं? वेयर, एट होम. प्लांटिंग, ट्रिमिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. सूदिस आइज, मतलब आइज़ को हमें सुकून पहुंचता है गार्डनिंग करके, हमें खुशी महसूस होती है, हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, ठंडक मिलती है. सो कीप्स मी फ्रेश. गार्डनिंग से मैं फ्रेश खुद को फील करता हूँ या करती हूँ. वाटरिंग, मैं उसको पानी देता हूँ प्लांट्स को. एंड कीप्स एनवायरनमेंट क्लीन. उसके अलावा इससे होता है प्लांटिंग करने से हमारी इन्वायरमेंट भी क्लीन रहती है. सो ये पॉइंट्स है जिनको हमने माइंड मैप की फॉर्म में लिखा. इन्हीं पॉइंट्स को अगेन यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ स्पाइडर वेब. So this is the spider web. Here you can see gardening, evening time, digging soil, at home, planting, trimming, keeps me fresh and keeps the environment clean. So these are the points which we have written these in the form of spider web. So students, you have to make the mind map and spider web of the village life on your notebook, same like in this way. This is your homework. And our next topic is kinds of noun. On page number 30, so you have to open workbook page number 30-31. You have to mention today's date and day here. A noun is the name of a person, place or thing. There are 5 kinds of noun. 9 noun की 5 kinds हैं. The first one is common noun. A common noun is the name of a common person, place or thing. For example, cow, water. आम जगह, जानवर या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? common noun. Like goat, city, school. These are the common nouns. Proper noun. A proper noun is the name of a particular person, place or thing. अल्लाह, पाकिस्तान, किसी खास जगह, जानवर या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कराची, अ प्लेस, लाइक प्लेस, जगह, दैट इज़ कॉमन नाउन. अब इसको कोई सिटी का नेम दे दिया, किसी कंट्री का नेम दे दिया कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दैट बिकम्स प्रॉपर नाउन. अली, बॉय और गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन. तो जब हम उनको स्पेसिफिक नेम दे दिया अली या गर्ल को दे दिया सारा, तो वो क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन. कायदे आज़म, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, स्पेशल पर्सन. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन. थर्ड वन इज़ कलेक्टिव नाउन. A collective noun is the name of a group or a collection of persons, animals or things that is regarded as a singular unit. For example, herd, army. ये collection of persons, जब उनको collective form में लिखा जाता है, इकट्ठा करके लिखा जाता है animals और things को, तो उसको क्या बोला जाता है? collective noun. मजमुआ, किसी भी चीज़ का मजमुआ, और हम उसको singular unit हम उसको बोलते हैं. For example,
herd army, and colony, bunch of flowers, team. So colony here represents for the animals, ठीक है. colony of ants, bunch of flowers, flowers जब बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो हम कहते हैं bunch of flowers. team again represents there are so many members in the team. Next come material noun. Material noun denotes the matter or the substance of which things are made. gold, cotton, किससे कोई चीज़ बनी है. gold है, cotton है, for example silver, wood, gold. These represents the material noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन आइडिया, अ क्वालिटी और अ स्टेट. क्या होता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन? रेफर्स करता है आइडियाज, इमोशन एंड कॉन्सेप्ट्स यू कैन नॉट टच, हेयर, स्मेल, टेस्ट. मतलब आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके आइडियाज़ हम उन्हें मैयर नहीं कर सकते, जस्ट हम उन्हें फील कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वर्चू, टाइम, लव, दीज आर द फीलिंग्स. दीज शोज द फीलिंग्स. वर्चू, टाइम, लव. So next on page number 31, the question is underline each noun and write whether it is common, proper, collective, abstract or material noun. We have read the definitions clearly and now we have to choose whether it is proper noun, abstract, common or collective. Taj Mahal is built using marbles. So Taj Mahal is the name of a specific building, special building. specific building किसी खास जगह का बिल्डिंग का नाम है ताज महल. सो दिस इज प्रॉपर नाउन. दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड. नाउ चेयर इज द कॉमन नाउन. चेयर, आम चेयर का बताया गया है. किसका बना हुआ है ये चेयर? वुड से. दैट इज मटेरियल नाउन. हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि मटेरियल नाउन क्या है? वो डिनोट करता है मैटर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड. सो वुड क्या है? मटेरियल है, मटेरियल नाउन. वर्चू इज इट्स ऑन रिवार्ड. सो वर्चू इज हेयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कि जो नेकी है, ईमानदारी है, उसका अपना ही इनाम होता है, उसका अलग इनाम होता है. सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. किंग सोलोमन वॉज नोटेड फॉर हिज विजडम. सो किंग सोलोमन इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, किंग. सो दिस इज प्रॉपर नाउन. और किस वजह से वो जाने जाते थे? विजडम. सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, शोज सम क्वालिटी. अली वॉज डिस्ट्रेस्ड बाय हिज फेलियर टू गेट द जॉब. अली इज द प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक बॉय. हैज़ फेम मेड हर प्राउड. क्या फेम ने उसे प्राउड कर दिया? फेम अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द बेल ऑफ कॉटन कॉट फायर. बेल ऑफ कॉटन. सो अगेन दिस रिप्रेजेंट्स द मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन, मटेरियल हो गया फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड. A herd of cattle was grazing in the fields. Herd of cattle. Herd is collective noun. कि मवेशियों का इकट्ठा जमा होना. जब बहुत सारे कैटल्स इकट्ठे होते हैं तो हर्ड बोला जाता है. सो दैट इज कलेक्टिव नाउन. अ कॉलोनी ऑफ एंट्स लिव इन द एंट हिल. तो एंट्स जब इकट्ठी होकर रहती हैं तो दैट इज कॉलोनी ऑफ एंट्स. कहाँ रहती हैं वो? एंट हिल में. सो दिस इज अगेन द कॉलोनी ऑफ एंट्स इज कलेक्टिव noun. So students, you have to write the you have to make the mind map and spider web of village life on your notebooks. And next page number 32, underline each noun and write whether it is common, proper, collective, abstract or material noun. This is your homework. You have to do this on your workbooks. Thank you. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.